السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم و مکرم حاضرین و سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے ہمیں اور آپ کو یہ موقع بسعادت و غنیمت حاصل ہوا کہ ہمارا آپ اس پاک بزم اور مجلس کا حصہ بن سکے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ہمارے اور آپ کی جانوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں اور انعام و اکرام ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 102 سے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور تو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے آیت نمبر 101 تک کی بات مکمل ہو چکی تھی، جس میں اللہ رب العالمین نے سفر کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹ اور قصر کیا آپشن دیے ہوئے ہیں کہ ہم اور آپ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو نمازوں کی جو رکعات ہے، تعداد ہے فرض نمازوں کی، اس میں چھوٹ ہے یعنی قصر کر سکتے ہیں۔ اس کی بعد اللہ رب العالمین ایک اور نماز کا تذکرہ فرما رہا ہے، جس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، خوف کی نماز۔ اصل میں صلاۃ الخوف کوئی نماز ہے نہیں، الگ سے جو نماز عام دنوں میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، انہی میں سے جو نماز جنگ کی حالت میں لڑی جائے اسی کو صلاۃ الخوف ہے، کیونکہ خوف کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اسلام اور کفر کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے، ایک طرف مسلمانوں کی جماعت اور دوسری طرف کفار کی، اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نماز کا جو حکم دیا وہاں پر جو حکم باقی رکھا، اور اسی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، جب تم اسی جماعت میں ہو، اسی ماحول میں ہو اور اسی مقام میں ہو، یعنی جنگ کا میدان ہے اور کافر اور مسلمانوں کی جماعت ہے، ایک طرف مسلمانوں کی طرف کافروں کی، اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب تم اس کے درمیان موجود رہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تم کیا ہے ان کی نماز کو قائم کرو۔ اب جنگ لڑی جا رہی ہے، جوہر کا وقت ہو گیا، اب کیا کریں ہم؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور تم ان کے لیے نماز کو کھڑی کرنا چاہو، یعنی جماعت کو کھڑی کرنا چاہو۔ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ چاہیے کہ کھڑی ہو جائے، ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحہ کو، یعنی ہتھیار جس کو کہتے ہیں، جنگ کے دوران جو ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں اس کو یہاں قرآن نے اسلحہ کہا ہے، اور اردو کے اندر بھی اسلحہ استعمال ہوتا ہے، عربی کے اندر بھی وہی چیز ہے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنے ہتھیار کو لیے رکھیں، کیونکہ جو سچویشن ہے وہ بہت ڈینجر ہے، بہت خوفناک ہے۔ ہم امن میں نہیں ہیں، ہم خوف میں ہیں، ہے نا، ہم جنگ کی حالت میں ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔
ऐसा नहीं है कि अगर हम नमाज पढ़ रहे थे की हालत में तो काफिर हमें छोड़ देंगे कि चलो नमाज पढ़ रहा है, अभी हमला नहीं करना, अभी इबादत करना नहीं। कभी भी कुछ हो सकता है, तब चाहिए कि हथियारों को लिए रहे। फइज़ा सजदू, जब उनमें से एक जमात सजदा कर चुकी, पर यकून मिन वराइकुम, तो चाहिए कि पीछे आ जाए, तो चाहिए कि तुम्हारे पीछे आ जाए। वर्ताती ताइफतुल उखरा, और दूसरी जमात जो है वो आगे बढ़े। लम यसल्लू, जो नमाज अभी तक नहीं पढ़ी है। फल युसल्लू माँ का, और उसे चाहिए कि तुम्हारे साथ नमाज पढ़े। वलियाखुदू हिज़्रहम व अस्लिहतहम, और उन्हें चाहिए कि अपने बचाव के सामान और अपने हथियार को अपने साथ लिए रहें। यहाँ पे सलातुल खौफ पर तरीका बयान किया गया। हदीस के अंदर बहुत सारे तरीके बयान किए गए हैं कि हालत जंग में हम नमाज कैसे पढ़ें। एक तरीका क्या है कि जंग का समय है तो फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। एक हिस्सा मद्दे मुकाबिल हो, काफिरों से लड़े। एक हिस्सा अपने इमाम की सरबराही में नमाज के लिए चली जाए। अब नमाज कैसे पढ़नी है, यहाँ जैसे बताया जा रहा है कि उनमें से फल तकुम ताइफतुम मिनहुम माका, तुम्हारे साथ उनमें से एक जमात को चाहिए कि नमाज को खड़ी करे। वलियाखुदू अस्लिहतहुम, और अपने हथियार को लिए रहे। और इजा सजदू, जब सजदा कर चुके, यहाँ पे कोई रकत का जिक्र नहीं हुआ, एक रकत पढ़ चुके तो पीछे आए, दो रकत पढ़ चुके तो पीछे आए। इसकी तफसीर जो है वो अहादीस के अंदर बयान है। एक तरीका ये कि फौज क्या है, दो हिस्सों में तकसीम हो जाए। एक हिस्सा जो है वो मोर्चे पे रहे, दूसरा हिस्सा अपने इमाम की सरबराही में जमात शुरू करे। इमाम नमाज पढ़ाए और हथियार के साथ नमाज पढ़े, बिल्कुल ड्रेस के साथ। जैसे आज के अगर आर्मी के ड्रेस की बात की जाए तो कुछ जूता वगैरह उतारने की जरूरत नहीं, इसी तरह नमाज में शामिल होते है ना। इमाम एक रकात मुकम्मल करे तो जैसे तशहुद में हमारा बैठते हैं, तशहुद समझते हैं, तशहुद के दो रकात पे जब तशहुद में बैठते हैं, इमाम एक रकात के बाद उसी तरह बैठे रहते हैं। और जो फौज एक रकात पूरी की है, अब वो मोर्चे पे चले, पीछे हट जाए, लग जाएगा कि फइज़ा सजदू, जब सजदा कर चुके, फलयकुन मिन वराइकुम, तो तुम्हारे पीछे चले जाए। अब वो चल जाए मोर्चे के ऊपर और दूसरी जमात चली जाए जमात में। दूसरी जमात कहाँ चल जाए, जमात में चली जाए, और इमाम उसी तरह तशहुद में बैठा है। दूसरी जमात खुद से रकात पढ़ी, दोनों जमात की रकात हो गई है ना। अब फिर वो मोर्चे पे चले जाए और पहले वाला मोर्चा छोड़ कर फिर जमात में आ जाए। अब इमाम खड़ी हो जाए दूसरी रकात की, और दूसरी रकात पूरा करे और फौज भी दूसरी रकात पूरा करे, या 4 रकात की नमाज है। ऐसी सिलसिला चलेगा। एक तरीका ये, एक रकात पूरा करे, मोर्चे पे जाए, मोर्चा आए, एक रकात पूरा करे। इमाम को क्या करना है, हर रकात में बैठना, जैसे तशहुद में बैठते हैं, ताकि पीछे वाले की वो जमात मिल जाए। दूसरा तरीका ये कि डायरेक्ट 2 रकात इमाम के पीछे पढ़ ले और 2 रकात के बाद वो चले जाए, इमाम तशहुद में पढ़ कर फिर वो जो मोर्चे पे वो वापस आए, वो 2 रकात इमाम के साथ पूरा करें, फिर वो चले जाए मोर्चा पे, फिर वो आए। अब दोहर का वक्त है, 4 रकात की नमाज है, 2 रकात आकर फिर इमाम के साथ पढ़े। ये भी एक तरीका बयान किया गया है। बहरहाल सलातुल खौफ इसी को कहते हैं। बाद लोग सलातुल खौफ के बाद अलग से एक नमाज याद करते हैं। सलातुल खौफ एक अलग नमाज है, एक अलग नमाज है, उसको अलग से पढ़ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सलातुल खौफ इसी को कहते हैं। पीछे भी आयत गुजर चुकी है कि अगर तुमको खौफ की हालत में हो तो पैदल सवार जो है सवारी पर नमाज पढ़ ले, पैदल जो जहाँ वहाँ नमाज पढ़ ले। और जब अमन हो जाए तो अपनी नमाज को पूरा पढ़ने से पहले पढ़ता है। अलग से कोई खौफ बोलकर नमाज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो असल मसला है, आगे अल्लाह बयान कर रहा है, वदल्लज़ीना कफरू लौ तगफुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम। काफिर ये चाहते हैं कि तुम अपने असला यानी हथियार से, और मता उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है साजिश सामान की, मालूम मता हम कहते हैं, यहाँ वही चीज वो अम्तिअतिकुम। काफिर ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियार और अपने सामान से गाफिल हो जाओ। लौ तगफुलूना लफ्ज़ है ना, लौ तगफुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम। काफिर ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियार और अपने साजो सामान से गाफिल हो जाओ। फयमीलूना अलैकुम मैलन वाहिदा, और तुमको अचानक धावा हो जाए। इसीलिए ऊपर में अल्लाह ने कहा कि जब तुम सलातुल खौफ की नमाज पढ़ो तो हथियार लिए रहो। हथियार को जमीन पर नहीं रखना है, क्योंकि आज के ज़माने में जो राइफल या गन वगैरह जो है उसमें एक धागा टाइप रहता था, आप उसको टांग सकते हैं, है ना, लटका सकते हैं बदन में।
لیکن اس زمانے کی جو ہتھیار نیزے تیر بھالے اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے جب اس چیزیں ہوتی تھی تو بدن رکھنے کی جگہ بھی ہوگا ہے نا, جو ہمارا نہیں سمجھتے کہیں نہ کہیں جگہ ہوگا. کیا اس ہم جانتے ہیں پہلے پٹا ہوتا تھا اور پٹا میں خنجر یا تلوار رکھ دیا کرتے تھے. خیر جو بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز کی حالت میں ہتھیار کو زمین کی مت رکھ. کافی تو چاہتے ہیں کہ تم غفلت برتو اور تمہارے اوپر اچانک حملہ ہو. آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ولا جناح علیکم ان کان بکم عزم من مطر او کنتم مرضى. ہاں اگر تم کو بارش کی وجہ سے مطر کہتے ہیں بارش کو, بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو, نماز پڑھ رہے ہیں بارش ہو گیا, اب لگتا ہے کہ اگر ہم ہتھیار لیے رہیں گے تو پانی لگنے کی وجہ سے جنگ لگ جائے گا, پانی کی وجہ سے ہتھیار کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی بارش میں کوئی تکلیف ہے اور تم مرض ہے, تم بیمار ہو, فوج میں تو ہے لیکن بیمار ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک وزن ہوتا ہے ہتھیار کا وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے, تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیکم, تم پر کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں, ان تضعوا اسلحتکم, کہ تم اپنے اسلحے کو نیچے رکھو. ایمرجنسی میں بارش ہو گیا یا فوج جو ہے فوجی جو ہے وہ خود ہی بیمار ہے, اس جو سامان کو اٹھا نہیں سکتا, اور یہ جو وقت تم مرضا مریض سے مرض آتا ہے یا تم بیمار ہو تو تم اسی صورت میں ایسی صورت میں اپنے ہتھیار کو زمین میں رکھ کے نماز پڑھیں. لیکن اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہے تو ہتھیار کو قطعاً تم زمین میں نہ رکھو بلکہ اپنے ساتھ رکھو. اگر نماز کی حالت میں ٹیک کر دو اس میں ہے نا. دیکھیے کتنا سیفٹی کا خیال رکھا اللہ رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ, لیکن اپنے بچاؤ کا سامان رکھنا. پھر اللہ نے کہا ایک بات یاد رکھو, اگر ممکن ہو سکے تو اپنے پاس سامان ہی رکھو نماز کی حالت میں. صلاۃ الخوف پڑھو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا, بے شک اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. مہین کہتے ہیں رسوائی کو, رسوا کر دینے والا عذاب اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس ایک بڑی جو آیت کریمہ آیت نمبر 102 لمبی چوڑی آیت ہے, اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیے کہ ایسی سچویشن پہ بھی اللہ نے نماز کو چھوڑنے کا حکم دیا. سوچنے والی بات ہے. لوگ کہتے ہیں نا دلیل کہاں کہاں, دیکھیے قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نساء آیت نمبر 102. اللہ یہاں کیا بیان کر رہا ہے کہ نماز پڑھو تو ہتھیار ساتھ رکھو. ہاں اگر بارش آ جائے بیمار ہو جائے تو ہتھیار نیچے رکھ دو, لیکن اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بارش ہو جائے تو نماز چھوڑو. سمجھنا ہے بات کو, اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے. ایسی بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو کھلے میدان ہوتی ہے نا. اللہ یہ تو کہہ سکتا تھا نا, ایک اور چیز یہاں اللہ بیان کر دیتا ہے اگر زیادہ پریشانی ہو رہی ہے ایک کام کریں آپ نماز کو ڈھیلے کریں. اب ایک چیز آپ کو ذہن میں آ رہی ہوگی کہ میدان جنگ ہے, نماز کا وقت ہو گیا, اب کون سے وقت میں نماز پڑھیں. مان لیجیے کہ جوہر کی اذان ہمارے یہاں 12 بجے کے 12:30 بجے, جنگ چل رہی ہے 12:30 بج گیا تو 12:30 بجے پڑھ لے. یا جیسے آج کل ہوتا ہے نا آدمی دکان چلاتے تو جوہر کو پڑھتا ہے کب 2 بجے کے بعد, دکان بند کرنے کے بعد یہ پڑھیں گے. اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ وہ چیزیں میرے بھائی کا آج مسلمان اتنا مغلوب ہو گیا پھر بھی مسلمان کی عقل ہوش کے ناخن نہیں لے رہے کہ اللہ کیوں ہم کو اتنا مغلوب کیے ہوا ہے. آج ہماری کوئی عزت نہیں, ہمارے خون کی کوئی قیمت نہیں. آج اس وجہ سے کہ ہم نماز کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے. ہم نماز کو وقت پر نہیں پڑھتے, صرف بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح ایکسکیوز ہو جائے کہ ہاں ہم نماز کو ڈیلے کر سکتے ہیں. یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ نماز کب پڑھیں, لیکن ہے کہ نماز پڑھنا ہے جنگ کی حالت میں بھی. لیکن اللہ نے آگے بیان کیا کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. یہ ہمارے اور آپ کی سوچ نہیں چلے گی شریعت کے اندر. اتنا خطرناک سچویشن ہے جنگ کے ماحول میں, یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو. اگر ہم اور آپ کے ذہن دوڑا ہے تو ہم بولیں گے تو ظلم, تو وہ لڑکوں کرو مردوں کو نمازوں پڑھو, ہے نا. اگر ہمارے آپ کے ذہن کی بات آ جائے تو یہی الفاظ لوگ کہیں گے کیا کہ تو لڑکوں کیجیے, کہیں لڑیے, جانوں گوائیے, نمازوں پڑھیے, بات نہیں پڑھیں گے ہم. سوچے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام بہت بھاری, ٹائم نہیں ملتا, گھر ہی آ کر ہم پڑھیں گے, پورا بدن جو ہے ہم میکینک ہے تو پورا لگا رہتا ہے, ساجو سامان کیسے پڑھیں. سوچیے وہ خون بھی تو لگے ہوں گے صحابہ کو, بہت سے صحابہ خون میں لگ بھگ بھی تو ہوں گے. جنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف دشمن کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ادھر نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. خون بھی تو بہ رہا ہوگا, ان کے ہاتھوں میں بھی تیر لگے ہوں گے, زخم لگے ہوں گے. پھر بھی اللہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نہیں نماز پڑھو بعد پڑھ لے نہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ کیا بیان کر رہا ہے, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, جب نماز تم ختم کر دو فَاذْكُرُوا اللَّهَ, اللہ کا ذکر کرو. سوچیے ابھی ایک اور چیز ایڈ ہو گیا.
फैजा कज़ीतुमुस्सलात, जब तुम नमाज खत्म कर चुके, पूरा कर चुके, कज़ा इसी मतलब होता है पूरा करना। जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फज़कुरुल्लाह, तुम अल्लाह का जिक्र करो, क़ियामन, खड़े होकर, रुकूअन, बैठकर, व अला जुनूबिकुम, और पहलुओं के बल लेट कर। अगर फौज खड़ी है तो अल्लाह का जिक्र करें, अगर फौज बैठी हुई तो अल्लाह का जिक्र करें, अगर लेटी हुई है तो अल्लाह का जिक्र करें। इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज नमाज के बाद जो जिक्र अस्कार है उसकी अहमियत बहुत है। आप अक्सर मस्जिद में देखते होंगे लोग नमाज पढ़ते हैं, इमाम सलाम फेरा, फौरन उठ के पीछे सुन्नत पढ़ के निकल लेते हैं। आप देखिए कि नमाज की क्या है, कि नमाज कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। अल्लाह कह रहा है कि फैज़ा कज़ीतुमुस्सलात, जब नमाज को मुकम्मल कर लिए तो ये काफी नहीं है कि हम नमाज पढ़ ले, बहुत हम अपनी मसाजिद में देखते हैं कि लोग सलाम फेरा फौरन उठ के निकल गए। जो जिक्र अज़कार, जो मसनून दुआएं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, ऐसा कुछ नहीं, बस उठे चल दी। यानी एक ज़हनियत हमारी और आपकी बनी हुई है कि सलाम तक नमाज है, सलाम फेर लेते। हाँ, कभी अगर इमरजेंसी हो जाए, शायद किसी को बाथरूम लगा हो, किसी के घर वाले हॉस्पिटलाइज हो, फोन आ रहा है, कोई बहुत जरूरी काम है जो करना ही है, तो आप जाइए, कहाँ इस्लाम रोकता है। लेकिन बिला वजह आप उठ के चले जाएं, सोचिए जंग की सिचुएशन पर अल्लाह कह रहा है नमाज खत्म हो गई, अभी काफी नहीं है, रुके बैठिए, अब अल्लाह का जिक्र कीजिए। जिक्र कौन करेगा? ये जिक्र, ये नमाज जानते ही क्या है? ये गारंटर है अल्लाह की मदद की। और आप क्या सोचेंगे, अरे जंग की हालत में क्या क्या अल्लाह कानून लगा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यही चीज की बुनियाद पर अल्लाह मदद करेगा, इसी चीज की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मदद करेगा, और उसी चीज को हम छोड़ रहे हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, फ़इज़त मअनंतुम, और जब तुमको इत्मीनान हो जाए, फ़अक़ीमुस्सलाता, तो नमाज को कायम करो। यानी कायम मतलब नमाज तो अभी कायम की। जब मुतमईन हो गए, इत्मीनान हो गए, जंग खत्म हो गया, अमन हो गया, तो अब जैसे नमाज पढ़ते थे सुकून की हालत में, अमन का वैसी नमाज, अभी चेंज नहीं करना है, एक रकात पढ़ जाएगी, फिर दूसरे और आएगी, वो एक रकात पूरा करेगी, नहीं। अब नॉर्मल जैसे लोग पढ़ते हैं, फ़इज़त मअनंतुम, जब तुमको इत्मीनान हो जाए, फ़अक़ीमुस्सलात, तो नमाज को कायम करो। इन्नस्सलाता कानत अल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर मुकर्ररा औकात में फर्ज है। ये असल चीज़ है, ये असल चीज़ है। कितने आसानी से लोग बहाना बना देते हैं, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता, हम ऐसी नौकरी चुनती क्यों जहाँ नमाज के टाइम ना मिले? अल्लाह ने दुनिया के अंदर पैदा किया है इबादत के लिए। एक नंबर पर इबादत है, दूसरे नंबर पर सारी जिम्मेदारी है। इबादत को हम 2 नंबर पे ला दे रहे, जिम्मेदारियों को 1 नंबर पे रख रहे हैं। क्या जवाब देगा अल्लाह को? पूछिए, अल्लाह पूछेगा। कुरान का एक हरफ सच्चा है। हम दुनिया में बोल सकते हैं लोगों को कि हमको टाइम नहीं मिलता है, वहां क्या बोलेगा अल्लाह के सामने? जहाँ एक तरफ जन्नत होगा, एक तरफ जहन्नम होगी, अल्लाह सामने खड़ा कर देगा पोजीशन को। जन्नत भी देखिए, जहन्नम भी देखिए। जहन्नम देख के तो हालत खराब हो जाएगी, अल्लाह फिर दुनिया भेज देगा। अब हम ऐसा ही काम करेंगे जहाँ तक नमाज का वक्त नहीं है, हालत खराब हो जाएगी देखकर। तो हदीस भी मालूम होती है कि मैदान में के पसीने में शराबर होंगे, कोई घुटनों तक, कोई टखनों तक, कोई सर तक डूबा होगा, फिर टेंशन में तो होगा क्या, रिजल्ट क्या रहेगा। आप देखिए ऐसी सिचुएशन पर ये आखिरी जो आयत है, आयत नंबर 103 की, कि इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर उसके मुकर्रर वक्त में फर्ज है, हम डिले नहीं कर सकते, उस सिचुएशन पर नहीं कर सकते। तो अब आप खुद सोचिए, हम खुद सोचिए कि क्या इससे बड़ी कोई खतरनाक सिचुएशन हो सकती है? एक तरफ फौज है, तीर चल रहे हैं, तलवार चल रहे हैं, लाठियां चल रही है, बम बारूद चल रहे हैं, वहां ना क्या नमाज पढ़ो? सोचिए, और वो भी टाइम पे पढ़ो, क्योंकि मोमिन के ऊपर नमाज मुकर्रर वक्त पर फर्ज, जो वक्त मुकर्रर है उस पर नमाज पढ़ना है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की हालत में भी और अमन की हालत में भी टाइम पर नमाज पढ़ा। सोचिए कि हमने इस्लाम को अपने लिए कितना आसान कर दिया, अपने हिसाब से मोड़ दिया इस्लाम में, जबकि वो इस्लाम नहीं, शरीयत वो नहीं है। शरीयत वो है जिसको अल्लाह ने कुरान के अंदर बताया। कितनी सिचुएशन खराब है, लेकिन नमाज पढ़ना माफ नहीं करना। तलवार रखने के बारे में क्या है, तो कोशिश करो साथ में रखो, देखिए गारंटी भी तेरा जान अल्लाह ताला, तुम्हारी जान बहुत कीमती है। लेकिन ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लास्ट में कही, बहुत अहम बात है मेरे भाई, कि हम लोग खुद ऐसे इमाम लोग अपने दीन की बात बता रहे हैं कि नमाज की हालत जो मुसलमानों के अंदर देखते हैं वो हालत नहीं पाई जाती जो असल हालत होनी चाहिए। हम नमाज भी पढ़ते तो अपनी सहूलत के साथ, हमारी दुकान है, हमारे शौक है, जोहर का वक्त हो जाए, मन नहीं,
2 बजे तक जोहर है। हैरत की बात है कि इमाम ही को लोग हदीस बताते हैं, नहीं हम तो असर तक पढ़ सकते हैं ना, टाइम तो असर तक है, टाइम तो असर तक है, ये हम भी जानते असर तक है, किस सिचुएशन में असर तक है ये भी तो बताना होगा कि किस सिचुएशन में आप ऐसी जगह पे जहाँ न वजू बनाने का पानी है, ना नमाज के लिए सफाई है, ऐसी सूरत में आप सफर में तो आपको वक्त पे नमाज पढ़नी है, कसर करके पढ़िए। सहाबा इकराम सवारी में पढ़ लेते थे नमाज, जिस पर सफर करते थे। टाइम असर तक है जोहर का, मिसाल देंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसका मतलब क्या होता है? और अल्लाह के रसूल ने कहा जमात को लाजिम पकड़ो, जमात को लाजिम पकड़ो। जमात अजान होती किस लिए? जमात के लिए मस्जिद के अंदर। अगर हर आदमी यही बात सोचने लगे कि असर तक टाइम तो मस्जिद तो खाली होगी, है ना, कोई जरूरी है कि हमारा आपको मदारी नहीं है कि हम लोग जमात में जाएंगे, हम क्यों लेंगे? हम भी वही सोचेंगे असर तक टाइम में। समझा रही? समझना होगा, समझना होगा। एक आदमी पेशेंट है, डॉक्टर ने जवाब दिया 72 घंटे इलाज, तो क्या हम 71 घंटे से इलाज शुरू करेंगे? अभी 3 दिन बहुत टाइम है, 2 दिन छोड़ दे और नहीं दिन सोचे कोई एक्शन लेंगे कि नहीं 72 घंटा एंड है, एंड बताया गया कि लास्ट 72 तक जी सकता है, तो क्या हम 71 दिन क्या थोड़े रहेंगे? हम शुरू रहेंगे भाई, किसी तरह बचे, एक वक्त कीमती है। इसी तरीके से नमाज बहुत अहम इबादत है, लेकिन उसको अपने हिसाब से हम ना करें। इस तरह की चीजें शरीयत इस चीज की कभी इजाजत नहीं देती। आप देख ले क्या सिचुएशन है, पूरा साफ साफ अल्लाह ने जंग के हालात को बयान किया, कोई पोशीदा नहीं है, अल्लाह माफ कर देता। नए नए मुसलमान थे साहबा, कुफर से निकल कर आए थे कि उनके लिए कम से कम आसानी कर दी जाए, बाद में इस तरह कर दिया जाएगा, लेकिन जर्रा बराबर छूट नहीं मिला। लेकिन ये जुल्म नहीं था, ये जुल्म नहीं था, यही गारंटी थी कि अल्लाह आपको मदद करेगा जंग के हालात में। और वही हुआ जंग बदर में 313 मुसलमान 1000 पर भारी पड़ गए। अल्लाह ने फरिश्तों के लश्कर को भेज दिया कि मेरे भाई कुरान मजीद बहुत बेहतरीन अजीम किताब है और इसके जो अहकामात है ये हमारे और आपके फेवर में है। इसलिए हम कोशिश करें कि जो भी हमारे और आपके अंदर खामियां हैं, ऐसा नहीं कि हर इंसान फरिश्ता है उसके अंदर कुछ कमी नहीं है, हम हमेशा अपनी कमी को तलाश करें, दूसरों की नहीं, अपनी। हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, हमसे कहाँ कमी हो रही है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब गवर्नर खलीफा बने तो आपने खलीफा बनते गवर्नर के साथ फेस टू फेस मीटिंग की। क्या मीटिंग थी उसमें? कि तुम लोग नमाज को लाके पकड़ना, तुम में सबसे ज्यादा अहम काम, सारे काम को छोड़कर नमाज से जब बढ़कर कोई चीज मेरे नजदीक नहीं होगी। ये उमर फारूक के पास था अपने गवर्नर को कि जितने इंपॉर्टेंट काम फाइल आ जाए तुम्हारे पास, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे नजदीक नमाज है। नमाज पहले, उसके बाद काम, पहले अल्लाह की इबादत, उसके बाद दूसरा काम करना है, क्योंकि एक को दूसरे काम करने की ताकत अल्लाह की है ना। कौन देखो, ये उमर फारूक के कौल थे कि तुम में मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट काम नमाज है, नमाज के अलावा कुछ नहीं। कहीं कमी होगी हम देख लेंगे, लेकिन नमाज की कमी बर्दाश्त नहीं। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बहरहाल आज का दर्स यहीं पर मुकम्मल होता है, आयत नंबर 102 तक। क्योंकि रास्ते घाट में जो है वारदात और मामला होते रहते हैं, और जो भी लेकर आए अल्लाह ताला को जज़ाए खैर दे, वहाँ हारे में लगे रहे, और साथ ही साथ आप लोग भी इंतजार में लगे रहे, जो ऑनलाइन भी हैं। ये भी तारीफ के काबिल है कि आप लोग लगे रहे। इंशाअल्लाह दर्स को सुनना है, लेकिन गाड़ी की खराबी है और कोई भी मुसीबत और मौत बोल कर नहीं है, ये अचानक आने वाली चीज़ें हैं, तो इसमें माजरत खाएँ हम लोग सब सारे अफराद और जिम्मेदारान, खास करके आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। इंशाअल्लाह ताला आज से इसका कोई अच्छा इंतजाम किया जाएगा। अगर कोई सवाल ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग पूछ सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद इंशाअल्लाह ताला सवाल जवाब आप लोग पूछ सकते हैं। अजान हो रही है, आप लोग इंतजार करें। कोई सवाल है? मतलब वक्त पे पढ़ना, मतलब अजान के बाद पढ़ना या के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल ये कि जैसे अभी वो आयत गुजरी कि इन्ना सलाता कानत लिल-मुमिनीना किताबन मौक़ूता, कि बेशक नमाज मोमिनों के ऊपर उसके मुकर्रर वक्त पे फर्ज है। सवाल ये है कि मुकर्रर वक्त कब हो? अगर फजर की नमाज हो, जोहर हो, असर, मगरिब, इशा, तो मुकर्रर वक्त कब हो? टाइमिंग तो काफ़ी ज़्यादा रहता है
ये फजर का टाइम यहाँ से यहाँ तक, जोहर का इतना, असर का इतना, मगरिब का इतना, इशा का इतना। जाहिर सी बात है कि सवाल है तो हमको सवाल का जवाब भी अल्लाह के नबी की को देखना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस वक्त पे नमाज पढ़ी है। और आप कुतुब अहादीस का मुताला करेंगे तो सारी चीज़ों का तज़किरा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज है ताखीर से पढ़ी, वो है इशा की नमाज। आपको हदीस पढ़ते होंगे कि सहाबा सो जाते, सहाबा इंतजार में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, जमात कराएंगे, सो जाते थे और आप आग उठाते जमात करते थे। इसी तरह एक और हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज इतनी ताखीर से पढ़ाते थे कि फजर हो जाती थी, फजर हो जाते थे, फजर के करीब करीब आप खत्म करते थे। आपने फजर, जोहर, असर और मगरिब इन 4 नमाजों को अव्वल वक्त में पढ़ा है, इन 4 नमाजों को, और एक नमाज जो है इशा उसको आखिर वक्त में पढ़ा है, मतलब मुअख्खर कभी जिसको कहते हैं, ताखीर से पढ़ा है। इसकी हिकमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते थे कि आपने किस वक्त क्यों पढ़ा है ना, सिर्फ एक नमाज छोड़ के इशा की नमाज। इसीलिए आपकी इत्तिबा में हमारे लिए जरूरी है कि हम नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ें, ये हमारे लिए जरूरी है। इसलिए कि एक हदीस मिलता है गर्मी के ताल्लुक से, सही बुखारी का मिलता है कि जब बहुत ज़्यादा हीट और गर्मी हो तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो। मतलब ठंडा करने का मतलब क्या है कि जोहर को ताखीर करो। तो जोहर को ताखीर करना इस बात की दलील है कि आप तो पहले पढ़ते थे अव्वल वक्त में, तभी ताखीर का हुक्म हो रहा है। अगर आप भी ताखीर करते तो ये बात ही नहीं आती, है ना, ये बात ही नहीं आती। अब जब ताखीर से पढ़े तो फिर आप क्या ताखीर करते, असर हो जाए। तो अव्वल वक्त में पढ़ने आप वसल्लम ने हर नमाज को पढ़ा सिवाय इशा के, उसको अपने ताखीर से पढ़ा है। अब ये कि उस जमाने में अल्लाह के नबी जिंदा थे, सूरज की किरण से वो लोग पता लगाते थे, चांद की परछाई से पता लगाते थे कि किस टाइम का नमाज कब शुरू होगा। अभी तो अल्लाह के में टेक्नोलॉजी आ गई, आपको बता देगी कि जोहर का वक्त कब शुरू हो रहा है, फजर का कब शुरू हो रहा है, असर का कब शुरू हो रहा है, हर नमाज का वक्त बता देगी। तो असल नमाज का जो सवाल हो अव्वल वक्त में, कि नमाज का जब वक्त हो जाए तो आप नमाज फौरन पढ़ लें। जैसे औरतों का एक मसला, बहुत गंभीर मसला है, औरतें अजान का इंतजार करती हैं, ठीक है। अब ऐप निकल गया है, बहुत सारे ऐप है जो नमाज का सिग्नल दे देते हैं, सलाम नमाज का वक्त शुरू हो गया, लेकिन औरत इंतजार करती है अजान का। उनके जहन में एक बात रहता है कि बगैर अजान का नमाज नहीं पढ़ सकते। जबकि अभी मैंने कहा कि अजान इसलिए दी जाती है जमात के लिए, मस्जिद में से अजान इसलिए दी जाती है ताकि मुसलमानों की तादाद जमात के तौर पर हाजिर हो जाए और इकट्ठे जमात बनाकर नमाज पढ़े। अब जैसे आज जोहर का वक्त है 11:37 का, तो जो नमाज पढ़ना चाहते हैं जमात लाजिम पकड़ना, याद रखिए मर्दों के लिए जमात लाजिम है, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए जमात लाजिम है। तो मर्द देखिए कि अव्वल वक्त पे नमाज पढ़ने की कोशिश करें, जमात करने की कोशिश करें, ताखिर ना करें। ताखिर ना करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया है। ताखिर उन लोगों के लिए जो किसी ऐसी जगह फंस गए जहाँ उनको वजू या नमाज के लिए वक्त नहीं होगा। अगर ये वक्त ना दिया जाता तो किसान नाइंसाफ लोग, ऐसे लोग के लिए जो इमरजेंसी में फंस गए। औरतों को चाहिए कि आप ऐप में चेक कर लीजिए कि जोहर का टाइम 11:37 पे, आप 11:15 पढ़ लीजिए, आप 11:15 पढ़ लीजिए, 12 बजे पढ़ लीजिए, आपका टाइम। अजान की इंतजार मत कीजिए, अजान जरूरी नहीं है। मान लीजिए हम सेहरा में, अजान की आवाज ही नहीं है, क्या करें, पर टाइम लेके हम नमाज पढ़ ले। बहुत सी जगह हम जाते हैं जहाँ जाने सुनाई देती, ट्रेन में जाते नहीं सुनाई देती, नमाज पढ़ लेते हैं, है ना। तो अजान दी जाती है जमात की, कि जो मोहल्ले वाले हैं मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज पढ़ें। अब एक जहन में सवाल आता होगा कि हम जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के जो मसले हैं उसको आखिर वक्त में पढ़ करके पढ़ा जाता है जमात को। जहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं पढ़ना है, नहीं समझना है कि एक मुखालफत की बात है। सबसे बड़ी बात ये कि दीन वही है जो अल्लाह की किताब में और जो नबी के फरमान में है, इसके अलावा कोई दिन नहीं है। चाहे बड़े से बड़े कोई अल्लामा क्यों ना आकर दीन की बात कह जाए, अगर उनकी बात अल्लाह उसके रसूल की तरफ साथ है तो ठीक है, नहीं तो खिलाफ है ना। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि नमाज सल्लु कमा रहे तुम्हारी उसली, तुम नमाज वैसा ही पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते हुए देखो। तो सिर्फ यहाँ पे नियत बांधना, रुको सजदे की बात नहीं। तो नबी ने किस वक्त नमाज पढ़ेगी देखना है, जोहर को कब पढ़ा, असर को कब पढ़ा, मगरिब को कब पढ़ा, इशा कब पढ़ा, ये उसी चीज को फॉलो करना है। रहा सवाल इशा का, तो इशा को आप जितना तारीफ से पढ़े बेहतर है। लेकिन मसला ये है कि हम जिस बस्ती गांव में रहते हैं, यहाँ के लोग काम काज वाले होते हैं, 2 बजे आके नमाज पढ़े कोई नहीं बुझाएगा, कोई नहीं है। इस वजह से इशा को भी हम लोग जल्दी पढ़ लेते ताकि लोगों को जमात मिल जाए, नमाज हो जाए। असर के वक्त में कितना डिफरेंसेस
नॉर्मली सारे वक्तों में ना मतलब सारे मकतब फिक्र जो है का जो वक्त देखेंगे वो आप मैच करेंगे ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऐप्स में भी हम लोग देखते हैं शाफी और मतलब हनफी बहुत ज़्यादा डिफरेंस इतना क्यों है? देखिए अभी एक सवाल ये है कि आमतौर पर देखा जाता है कि लगभग सारे जो मतलब फिक्र के हैं चाहे जिस जमात से हो, नमाज के वक्त आधा घंटा पौन घंटा या 15 मिनट का डिफरेंस रहता है, लेकिन एक वक्त नमाज असर उसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है कि इसकी वजह क्या है। देखिए मैंने वही बात अभी बीच में भी कही कि दीन इस्लाम वही है जो अल्लाह की किताब में और नबी के फरमान के अंदर मौजूद है। सवाल ये है कि जब से तकलीफ का सिलसिला आया और हम लोगों ने अल्लाह के रसूल की तकलीफ से हटकर उलमा की तकलीफ में आ गए तो ये सारे मसले पैदा हो गए। यहाँ कोई मसले की बात नहीं है, ना किसी आलिम की बेइज्जती की जाए। जितने भी अल्लामा ये उलमा थे सबकी आप किताब पढ़े, चाहे इमाम हनीफा की पढ़े, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पढ़े, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पढ़े, आप इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के पढ़े या इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पढ़े, सबों ने अपनी बात बयान करने के बाद एक बात कॉमन जो बयान किया है कि अगर मेरी बात अल्लाह के रसूल की बात यानी अल्लाह और उसके रसूल की बात से टकरा जाए तो मेरी बात को दीवार पर क्यों? क्योंकि हर आदमी अपने अकल के हिसाब से मेहनत करता है, कोई सही रास्ता पा जाता कोई नहीं पाता, यहाँ किसी को गलती कहा जाए। ये सब बड़े बड़े इमाम गुजरे हैं लेकिन इनको भी पता था कि हम इंसान हैं, गलती हमसे हुई होगी है ना, उन्होंने बयान कर दिया। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए कि हमें कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है। अभी हम यहाँ बैठे हुए एक बात हम बोलते हैं कि आप ऐसे करें तो आपके अंदर क्यों होना चाहिए, क्यों ऐसे करें आप बताइए, आप उसके रेफरेंस दीजिए, सबूत दीजिए। ये मांगना हर मुसलमान का हक है, इसलिए उसको उस पर अमल करना है और उसी अमल के बुनियाद पर जहन्नम का फैसला होगा। समझ में आ रही है ना? तो हम खुद पढ़े लिखे आदमी हैं, कोई आदमी आपको आकर कह दिया कि भाई कल से गवर्नमेंट 10 दिन की छुट्टी दे रही है और ऐसा कोई बात ही नहीं, हम क्या कल से नहीं जा अपने ड्यूटी पे, ये सुनकर किसी ने कह दिया नहीं हम उसको इंक्वायरी करेंगे भाई सही बात है कि नहीं, कोई नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया, किस बात की छुट्टी, अचानक छुट्टी कैसे लागू। जब हर चीज में तहकीक करते हैं तो मेरे भाई किताब सुन्नत के अंदर दीन के अंदर तहकीक ज्यादा होती है। दर्स को यहीं पे खत्म किया जाता है इस दुआ के साथ, परवरदिगार आलम तो हमें हर बात के लिए हर बात सुनकर उसका अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिक इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमाम साहब जो हो गया और जो असर